السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، چند دن پہلے ہم نے اپنے ایک روایتی سیگمنٹ میں بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کے حوالے سے ایک سچویشن کو فیچر کیا تھا. الحمدللہ اسے لوگوں نے پسند کیا. مجھے ذاتی طور پر بڑا اطمینان تھا کہ یہ ایک رول ہے جو ہر ٹی وی چینل کو پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. کبھی کبھار ہمیں ہوتی ہے، اور وہ بھی تواتر کے ساتھ نہیں، ونس ان اے وائل، اور ہم کچھ نہ کچھ رول پلے کرتے ہیں. جو دلچسپ بات تھی وہ یہ کہ ایک صاحب نے ایک سے زائد جگہوں پر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں آئندہ وہ بدتمیزی کبھی نہیں کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا تھا، اور کسی وجہ سے میرا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا. پہلی دفعہ آپ کا شو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ مجھے دو عادات ایسی ہیں جو اتفاق سے ایک ہی شخص میں آپ نے دکھا دی، اور میں بڑا مشتاق ہوں اس کے بعد ان سے ملنے کا. لیکن ظاہر ہے میں نے نہیں کہا، ورنہ وہ کوئی بعید نہیں، یہیں پہنچ جاتے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ میں سر کھجانے کے باقاعدہ مرض میں مبتلا ہوں، ہر وقت سر کھجاتا رہتا ہوں، اور اس کا تعلق کسی خشکی کسی سکری سے نہیں ہے، ہیبیچول، یہ ہیبیچول ہے. اور دوسرا، میں واقعی فلک شگاف نعرے لگاتا ہوں جب اپنا گلا کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں صاف کرتا ہوں، کسی ایون ایئرپورٹ پہ جا کر میں نے، یا کسی لاؤنج میں جا کر منہ دھونا ہے، یا کسی بھی طرح سے گلا صاف کرنا کسی ہے، بھی پبلک پلیس، تو میں جو کچھ کرتا تھا مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. اور میں آپ کے ساتھ پرومس کر رہا ہوں کہ میں 28 سال کا نوجوان ہوں، اور جتنی میری عمر باقی ہے میں یہ دونوں حرکتیں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. بہت اچھی بات. اب میں نے محسوس کیا کہ اگر ایک شخص بھی ہمارا شو دیکھ کر راہ راست پر آ جاتا ہے نا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بار بار یہ سیگمنٹ کرنے کو تیار ہوں. لیکن سر یہ بھی دیکھیے کہ ہی از بریو انف، پلس آلسو ہی ہیز دا ایکسیس کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے نہیں ہوں گے لیکن ایٹ لیسٹ اپنی کریکشن خود کر لیتے ہوں. جی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں نے اسے اپریشیٹ بھی کیا. نارملی میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ رسپونڈ کرنا شروع کر دوں. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے جس طرح سراہا، مجھے اچھا لگا، کیونکہ یہ سن کر ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ شو بہت مزے کا ہے، شو بہت اچھا ہے، شو از کیچنگ پیس، شو از گیٹنگ بیک انٹو دا گروو. جی، یہ ساری باتیں لوگ روز کہتے ہیں ہم سے. یہ سن کر مجھے خصوصی طور پہ خوشی ہوئی، اور یہ آج کا امپیٹس ہے، یہ آج کی وجہ بنی کہ یہی سیگمنٹ ہم ایک نئے انداز میں انہی کیریکٹرز کے ساتھ پھر سے کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ہم اکثر کیا کریں گے. یو نو وائی؟ کیوں؟ کہ اس کی ڈیوریشن ختم ہو جاتی ہے 15 16 17 منٹ میں، جبکہ بدتمیزیاں وہ ہیں جو ہم نے پچھلے 150-200 سال میں سیکھی ہیں، اپنائی ہیں، اور ان کا حجم اس سے بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہنا چاہیے. جی جناب. یار میں نا بچپن تو ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਤਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ. آپ پبلک پلیس پہ بیٹھ کے ایٹ اے ٹائم 2 بدتمیزیاں کر رہے ہیں. یہ کون سی بدتمیزی کی جی میں نے؟ یہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سیٹیاں بجا رہے ہیں. اچھا، سیڑھیاں ڈرائنگ روم میں نہیں بجائی جاتی، یہ باہر پبلک پلیس پہ بجائی جاتی. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ اور یہ جو آپ سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں، کیڑا پاگل دا پتر سگریٹ پی رہے ہیں؟ یہ جو ویپ ہے یہ سگریٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ سر یہ سگریٹ نہیں ہے پلیز. میں نے یہ جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں لیا، میں نے پینے کے لیے لیا. یار کس جگہ پہ پھر وہی پرابلم. یار بس منہ دے اسی طرح یہ ذرا ہمیں نا انجوائے کرنے دے پلیز. میں کروڑا پتی آدمی ہوں تو مینوں مودھا کہہ رہے ہیں. بھائی میں میرا نام محمود ہے، محمود پنو. تے پنو اج بھی اپنی سسی دا منتظر ہے. کی کہا میں؟ سسی دا منتظر ہے. اوے ہولی بول ساڑیا، میں نہرو پار بیٹھا. یار کتے تو نا. یہ تم نے پھر کش لگایا. ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. واہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میں حیران ہوں کہ تمیز کی باتیں کس طرف سے آ رہی ہیں. ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ.
ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ तुमने सुना नहीं कि इसकी ममानियत है? ये आप सिर्फ वहाँ पी सकते हैं जहाँ पर स्मोकिंग एरिया हो, स्मोकिंग अलाउड हो। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने तो पीनी है यार, हमने जो बड़ों से सीखा ना हमने वही करना है। मेरे पापा भी पीते हैं, कोई प्लेस नहीं देखते, वो पीते हैं बस ठीक है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। एब्सोल्युट। कित्थों ले आके भाया जे SHO टाइप आदमी है, कौन है? ये पाकिस्तान से आए हुए हैं भाई साहब, कुछ अरसा रहे हैं यहाँ पर, और देखो एतराफ कर रहे हैं कि मैं अब इस माहौल में ढल चुका हूं, मैं बदतमीजी बदतहजीबी नहीं करता। ਓਏ ਆਪਣੀ ਤਮੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਲਾਈ ਪੋਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। अच्छा उस्ताद तेरी अखां लगदा काम नहीं कर रही हैं, कुड़ी एक नहीं कुड़ियां दो ने। एक्सक्यूज मी, कैसा है? दूसरा भी कुड़ियां रगाई है। आप मेरी बात सुने, आपके घर में फीमेल नहीं है कोई? इस तरह आप देखें, आप बार बार लड़की को घूर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ओ यार क्या हो गया भाई, अपने काम से काम रखो। प्लीज 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 कोई। अच्छा डॉक्टर साहब एक गल मैं तो हाँ क्या गल हुई है? अच्छा ये देखो कैसी बदतमीजी, कितनी ऊंची आवाज में, ये रिंग टोन थी उसकी। तौबा। SHO नाल मेरी गल करा, साडा छोर किवें फाद लिया उन्ना? वो गल करन वाली हाँ गल करा जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी एकदम टोन चेंज होगी। सर मैं चौहान, उस भाईजान की करदे हो? छोर साडा मासूम है, 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, मैं आप हाजिर होना, मेहरबानी जी। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। मेरी बात सुनो, ਇਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो? ये जो गधा सिफत सिंगर है, लो जी तरीफ भुगतो, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आई जे। सीरियसली एक बात पूछ रहा हूं मैं, अच्छा जी, तुम कभी चाहोगे कि तुम्हारी बहन इस तरह बैठी हो और तुम जैसा लफंटर उसके आसपास इस तरह गाने गा रहा हो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर इन जैसे लोगों की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते। देख ले कितनी बदतमीजी और बद इखलाकी कर रहे हैं ये ओ लोग। भाई हमने आपको डिस्टर्ब किया या आपकी वीडियो बनाई या आपको कुछ भी कहा, आप क्यों फजूल में यार? आराम से बैठे में मैं आपको बता रहा हूँ। ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? किस चीज में? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। असल में हमारी ग्रूमिंग नहीं हुई, यही तो रोना रो रहे थे उस दिन भी हम, आज भी यही कहते हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे कि हमें एजुकेट नहीं किया जाता, ना घर पे एजुकेट किया जाता है, ना स्कूलों कॉलेजों में किया जाता है, ना सोसाइटी में एक दूसरे को एजुकेट करने की आदत है। मुझे तो लगता है कि उन्हें पता होता है, मतलब सीखे होते हैं, लेकिन कोई फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाके या किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी किस्म की हो, कोई उनके अंदर की कोई निकलती है। यही कुछ वेस्ट में भी हो सकता है, वहां भी लोगों के ऊपर बड़े प्रेशर्स होते हैं, वहां पे भी लोग कैथारसिस करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि वहां पे नहीं होता, इस तरह की हरकत नहीं करने देता कोई? ये जो पीयर प्रेशर है ना जी, उसमें ये भी शामिल है कि ऐसी कोई हरकत ना करें आप जिससे नक्ज़े अमन का मसला बने, जिससे दूसरों का एस्थेटिक्स का प्रॉब्लम बने। ऐसा हरगिज आपको सोसाइटी नहीं करने देती, डिसअप्रूव करती है। और कुछ ना हो तो डिसअप्रूवल, एक ऐसा डिसअप्रूवल, मतलब मुझे याद है मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उन दिनों मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे था, तो बर्गर खाते हुए मुझे सिर्फ मीट खाना था और बाकी छोड़ना था, और ये अमल कितना कभी लगता है बाज़ औक़ात, लेकिन मैं कर रहा था अपने ध्यान में कि मैंने ये करना है। साथ हम सब लोग बैठे हुए थे, एक गोरी मुझे देख रही थी, बुजुर्ग सी थी, साथ उसके एक मतलब मिडिल एज दोनों थे, वो देख रहे थे। उसकी आंखों में इस कदर एक एजुकेटेड डिसअप्रूवल था कि मैंने जो ही देखा ना आंखें लॉक हुई, उसी वक्त खाना छोड़ दिया मैंने, कि सवाल ही पैदा नहीं होता मैं ये हरकत नहीं करूंगा। देखो ये उसने पेन्स ली कि उसने कम्युनिकेट किया कि ये बंदा अगर नहीं भी समझता मैं तो अपना फर्ज पूरा करूँ ना। हम लोग तो कहते हैं चलो इग्नोर कर रखो। हम इस कदर एपैथी ज़दा, हाँ। इस कदर बेहिस और थिक स्किन्ड है
कि हमारे पास बैठ के दूसरे को आग भी लगा रहा है ना कोई, हम जगह चेंज कर लेंगे, उसे मना नहीं करेंगे। ये है विसल ब्लोइंग का फुकदान। जी मैं हमेशा नहीं कहता, हमेशा गुजारिश करता हूं कि विसल ब्लोइंग की आदत डालें। आपके जो फराइज हैं उनमें से एक ये भी शामिल है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात अपने अफसाने में ये लिख रखी है कि कहते मेरा कान नहीं, मेरी शरियान फट गई थी। उनकी इतनी ऊंची आवाज में उन्होंने गालियां दी तुम्हें। कहते नहीं, गालियां तो उसने बहुत ऊंची आवाज में दी, मेरी शरियान फटी इन सब की खामोशी की वजह से। ओए ये चुप करके खामोश गाय भैंसों और मवेशियों की तरह उसे सुनते रहे। किसी से इतना नहीं हो सका कि डिसअप्रूवल तो दे उसे। अच्छा देखिए, एक नई बदतमीजी, गौर कर रही हैं आप डॉक्टर साहब, ये कर क्या रहा है? ऊपर से मतलब किस कदर इबरतनाक दांत है इसके, और देखो खलाल कर रहा है बगैर आगे हाथ रखे। मेरी गल हो रही है, हाँ जी, आपकी बात हो रही है, आपको शर्म नहीं आ रही? अब ये कर क्या रहे हैं? टूथपिक कर रहे हैं सर, की क्यामत आ गई कोई। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੀ ਓਏ? ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਪਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੀ ਕੀ ਰਿਹਾ ਓਏ? 7 ਅਪ ਸਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਫਸ ਗਈ। नहीं तो मिस्टर टूथपिक, अगर आपको इतनी कोई इमरजेंसी हो गई है तो आप जाएं, जाके वॉशरूम में जाके शीशे के सामने कर लें, या हाथ आगे रखे, हाथ आगे रखे। है ना? सर मैं माजरत खामा, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। एक्सीलेंट, शाबाश। ਅੱਛਾ ਇਹ 2-4 ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 24 ਕਰੋੜ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਭਾਏ ਨੇ, 24 ਕਰੋੜ। सबसे बड़ा बेशरम इस वक्त यही है, ये जो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है ना। तो एक तो इसको एथिक्स नहीं है और ऊपर से ये ढीठ है, जो करता है उस पे अड़ भी जाता है। ये जो सबसे इधर बैठा है, जी इसी की हम बात कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਆਂਦੇ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ। ਹੈ बेशर्मी कर रहा है, कचबैसी कर रहा है, लानत भेजे उस पे। और सर आप जानते नहीं हमारा बैकग्राउंड, हमारा खानदान, हाँ जी, और ये रेस्टोरेंट आपका नहीं है। आप जैसे हमारे रंग में भंग डाल रहे हैं और हम चुप करके बैठे आपकी बातें सुने जा रहे हैं। ਸਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੀ ਖੋਤੀ? अच्छा, आपने गौर किया कि कमरे में बैठा है उस वक्त से सनग्लास सनग्लासेस लगा के? ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਉਣ ਡਿਆ, हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਓਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਈ। और रक्षा रहने दे, मेरी गड्डी ले जा। ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ। भाईजान वो काले रंग की फॉर्च्यूनर आपकी है? जी नहीं, जान आपकी है फॉर्च्यूनर काले रंग की? ओ भाई बता दे, कोई बता ही नहीं रहा। काले रंग की गाड़ी किसकी है? हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी है। नहीं बाजी, हमारी नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ तुम्हें? आफ्ताब साहब 1 घंटा हो गया हमें इंतजार करते हुए, पता नहीं कौन बदबख्त गाड़ी खड़ी कर गया है। किसकी गाड़ी है यार? आप पागल तो नहीं है, समझ नहीं रहे? ओ भाई फोन वाले, हेलो हेलो, गाड़ी आप लोगों की है? आहो, और काली गड्डी मेरी एक ही है। भाई मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ गाड़ी पीछे करें, हमने गाड़ी निकालनी है। ओ यार कर लांगे, अभी रोक क्यों चढ़ रहे हैं? थोड़ी देर बाद खाना खा के निकलेंगे, थोड़ा इंतजार करो, बैठो। जाओ। अजीब बात है भाई, की पार्किंग बात में है। आपने लगाई हुई है, हम जलील हो रहे हैं। उठें, गाड़ी हटाएं वहां गाड़ी से। हटाएं। उठें। देखो मेरा ड्राइवर कम गया है, उन्हें आ गया तो फिर आगे पीछे कर देंगे। जरा हैं, बैठ जाओ। ओए बात सुनो, तुम्हारे पास चाबी नहीं है? वो चाबी है पर प्लीज खाना आना लाए तो खाना खा के जावांगे ना, थोड़ी देर 2 मिनट बस। 2 मिनट। यार वो इंतजार कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो तुम? अब बाद में खाना, पहले गाड़ी हटाएं। आपने क्या रक्षा निकालना पीछे से? घंटा हो गया यार, हमारी गाड़ी है। और तू सुनिया नहीं, स्टूपिड इंसान को बदतमीजी कर रही है। वो कह रहे हैं कि 2 मिनट बाद साइड से काट लेंगे, प्लीज चलो जरा, 2 मिनट खाना खा के आ रहे हैं। ओए क्या बदतमीजी की है उन्होंने? आफ्ताब साहब प्लीज साढ़े मामले जी ना बोलो, बस बहुत हो गया है। और चलो बुढ़िया निकल, तो चल चल चलो शाबाश, चलें शाबाश, चलो निकलो, शाबाश। हद हो गई है। कैसी बदअखलाकी का मुजाहरा किया इसने, इसे शर्म ही नहीं आई। उसके साथ खातून थी। हाँ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। यार किथे रह गया खाना यार? वेटर लो जी खाना आ गया। आहा की गर्मा गर्म खाना, मजा आ जाएगा ये। हैं हाँ भाई होना ओ बिल्कुल एक मिनट, ओ जा, ओ गड्डी साइड दे, ओ गड्डी साइड दे, गड्डी साइड ते कर जा। नहीं करता के तो
हाँ भी तू की बकवास कर रहा से ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ। तेरी शायद ते सारा कुछ कर रहा सी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। तो उस वेले क्यों नहीं बोलिया तू अच्छा भाई, अब किधर गई तुम्हारी शौकीनी? ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। हमेशा अपने आप को तुम जैसे जलील करते हैं, अंजाम ये होता है हमेशा। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, वाह वाह और हस्बे रिवायत सबसे पहले एक तस्हीह, एक करेक्शन। फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ता, गुलदस्ता, हाँ जी, तो फूल किस तरफ से आ गए? ਸਰ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ, उससे बोला ही नहीं जा रहा। चूंकि ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ। तुम पे फूल डालने वाले हो चुके। ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਜੀ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 2 ਕੁ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? तुम खुद बताओ, फूलों का गुलदस्ता, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 100% ਠੀਕ ਹੈ। नहीं, वैसे मैं सीरियसली पूछ रहा हूं तुमसे पुन्नू, हाँ जी, क्या मतलब प्रॉब्लम तुम्हें कोई नजर आता है इसमें कि फूलों का गुलदस्ता? और किस चीज का होता है? कारतूसों का गुलदस्ता होता है, किसका तलवारों का गुलदस्ता होता है? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਵੇਚਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ओ भाई पुन्नू देखें, गुल किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं जब गुलदस्ता, हाँ जी हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स, जी, यानी फूलों की एक मुट्ठी समझ लो, हाँ जी। तो फिर उसको आप फूलों का गुलदस्ता क्यों कहते हैं? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਵੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹੋ। नहीं, बात सिर्फ इस हद तक है कि कहें कि मुझे गुलदस्ता दे दे, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। ये बुके ऑफ फ्लावर्स तो मेरा ख्याल है शायद चल सकता है, ਬੁਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਹੈ। बुके काफी है, लेकिन फूलों का गुलदस्ता हरगिज नहीं चल सकता। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। अगर आइंदा तुमने कहा ना, फिर तमाशा देख। ਸਰ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ। ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਨ ਲਈਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। अच्छा जी, आज का पहला लफ्ज। ये हुएश इतनी जल्दी अभी सबसे पहले एक फ्रेज है, चारों शाने चित। हाय हाय हाय, चारों तरफ से जेर हो गया, गिर पड़ा। चारों तरफ, खाने तो सर 2 नहीं होते। ਫਰੀਦ ਕੀ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। वो कमरा जिसके 4 कोने, जिसका एक भी कोना नहीं होता। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਭਾਜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਗਲਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾਈ उसको ਚ। गोल कमरा कहते हैं यार। ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਣੀ। तो कहते हैं बंगला। बंगलो। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। बैंगल से बैंगल चूड़ी, बैंगल, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ। बैंगल से बैंगलो। ਸਰ ਗੋਲ, और माहीगीरों की जो गोल गोल झोंपड़ियां होती हैं, ਜੀ ਜੀ। उस गांव को, उस इलाके को क्या कहते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश, आई समझ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਪਾ, वो बैंगलोर, पगोडा होता है, पगोडा। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾੜਾ ਨਾ ਕਢਾ ਦੇਣਾ ਪਗੌਲਾ। वो चाइनीज, जापानीज, हांगकांग, वो पगोडा होते हैं। जी जी, ये जो दोनों लफ्ज हैं बैंगल्स और बंगलो, 2 डिफरेंट जबानों के लफ्ज नहीं है। एक जबान से ट्रेवल करते हुए मुतअद्दिद जबानों में लफ्ज जाते हैं, मंबा एक ही होता है। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। चारों शाने चित, डिफीट को कहते हैं। इसका मतलब तो ये कि जी उसको चारों शाने चित कर दिया। ये होता है चारों खाने चित। खाने चित होता है, शाने चित नहीं होता। जैसे लूडो के जी, होम्स जैसे चित और पट। चित का मतलब होता है लिटा देना नीचे, कंड ला देना यूं, सही। और पट होता है उल्टा कर देना कि आपकी कमर आसमान की तरफ हो। अब चारों शाने चित तब ठीक हो अगर बंदे के 2 नहीं 4 शाने हो, 2 ये और 2 यहां लगे हो। वो हो सकता है जी चारों शाने चित। जो गेम है ना अखाड़ा, जो पुराना इंडियन एंड ईरानियन कुश्ती थी, वो खाने बना दिए जाते थे। पहलवान लाजमी दूसरे को हर खाने में चित करता था, उसको लिटाता था।
कि उसकी कमर लगानी है तो उसका मतलब है चारों खाने चित हो गया भाईजान, दैट्स इट। ਸਰ ਉਹ ਖਾੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ जी ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? अच्छा जी, अगला लफ्ज मिस्त्री। ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਦੀ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2500 ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ मिस्त्री होता है जेड़ा मकान किसी भी चीज का मकान बनाता हो, वो ब्रिक लेयर होता है जो राज मिस्त्री होता है, वो भी गाड़ियां ठीक करने वाला मैकेनिक। लोग समझते हैं कि मास्टर से है कि मास्टर साहब उस्ताद कि जो उस्ताद है ना जी। इससे मिस्त्री निकला है। ये बुनियादी गलती हम उर्दू में करते हैं, इसको ते से लिखकर, जबकि ये तोए से है। ये मिस्तर एक आला है मापने का, हाँ। जो नाप तोल करता है ना, जो आपकी दीवार को यहां से लेकर यहां तक उसको नापता है, उसको मिस्तर कहते हैं। और जो फुट्टा, जिसको हम फुट्टा कहते हैं कि ये फुट्टा है, हालांकि उसके लिए लफ्ज रूलर होना चाहिए, लेकिन हम उसको फुट्टा कहते हैं। वो 1.5 फुट का भी होता है, हाँ, वो फुट लॉन्ग से फुट्टा। तो फिर फुट्टा क्यों कहते हैं उसको? वो रूलर उसके लिए लफ्ज है। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਹਿਸ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸਤਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੋਏ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਤੋਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ तुम तोए वाले नहीं हो इसलिए तुम्हें आधी दिहाड़ी मिलेगी। अच्छा जी, लफ्ज सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा वो क्या होता है? 100 से कुछ होगा, सेंचुरी। 100 कहते हैं ना, सैकड़ा मीन्स 100, तो ये गलत है। ਅਸੀਂ ਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ये नून नहीं है ना, इसमें नून है ना एंड पे हे है, ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ये सैकड़ा है, सैकड़ा। हिंदी के जो अल्फाज है ना जितने भी, उनमें हे नहीं है, हे नहीं आता एंड पे। तो रुपया हे नहीं है, अलिफ है। ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਰੁਪਇਆ। जी गलत लिखा हुआ। ये बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम उस इलाके के मुताबिक ढाल लेते हैं, तलफ़ुज़ उस इलाके, औज़ान जो है, मसलन फारसी में, अरबी में अगर कोई एक वज़न नहीं है तो पंजाबी उर्दू में होगा। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमने इन्हें लोकलाइज कर लिया है, पाकिस्तानाइज, इंडियनाइज कर लिया। जैसे एक लफ्ज खुशामदीद है, खुशामदी, खुशामदीद, प्रॉपर वर्ड ये है, लेकिन मैं मुसर हूँ खुशामदेद, क्योंकि इसका आहंग बहुत खूबसूरत, खुशामदेद, और एक्सेप्टेड है। क्यों? हमारे यहाँ ये वजन मौजूद है। जेब, रेब, केब, सेब। सेब, ये वजन है, फारसी में नहीं है, वहां जैब है, जैब। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि एक साहब ने स्टेट बैंक पे केस कर रखा है कि हमारे नोट पर 10 गलतियां हैं ग्रामर की। केस किया हुआ है कि इसको ठीक करवाया जाए, और ये फ्रिवलस लिटिगेशन नहीं है। कुछ लोग एतराजात करते हैं बड़े फ्लिमजी नौयत के कि टेलीविजन ड्रामों में, फिल्मों में हिंदी अल्फाज आते जा रहे हैं। आफ्ताब साहब, उर्दू तबाह की जा रही है, इसको बचा लें, खुदा का नाम है। मेरे ख्याल में ये एतराज़ सही नहीं है, और लैंग्वेजेस वैसे भी इवॉल्व होती हैं। लिंग्विस्टिक प्योरिज्म जो है ना, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरे ख्याल में रुपया अगर आप हे से भी लिख दें, क्योंकि वो काफ़ी मुस्तमल हो गया है, तो अब अलिफ पे इसरार मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। कतन मुसर नहीं हम, मैं तो खुद कहता हूं कि इसरार मत करें, लेकिन हकीकत ये थी, बन ये गई है। मैं तो खुद कह रहा हूँ खुशामदेद, Yes, that is realistic approach. ये खुशामदेद। हमारे यहाँ जो ये औजान मौजूद है, वो पीछे हसनैन अहमद बैठा है, ये हसनैन अहमद साहब, आप जानते हैं ना कि औजान की, उरूस की पूरी खबर रखते हैं। क्यों भाईजान? हमारे यहाँ ये वजन मौजूद है ना, सेब, जेब, ये बिल्कुल मौजूद है, और अरबी फारसी में नहीं है। वहां पर जुनेद लोग कहते हैं। मेरे भाई का नाम जुनैद है, कि बीवी उसको जुनेद कहती है। सर हम अक्सर शोएब कहते हैं, बट द वर्ड ये शोएब है, शोएब, जुनैद। क्यों? सुहेल, सुहेल, सुहेल अरबी में वजन ही नहीं है। जी हाँ, सुहेल, जुनेद, शोएब, ये हमने कर रखे। अवेस, यानी मेरे 2 भाई, दोनों का नाम मिसप्रोनाउंस होता है, पता नहीं किस तहजीब के तहत। लगता है जैसे बड़ा महजब सा है अवेस कहना। दिस इज उवैस। उवैस पेश से भी और बगैर पेश के भी मुस्तामिल है अवैस, लेकिन अवेस या उवेस कहीं भी नहीं है। प्योर अरबिक वर्ड है। अच्छा, अवैस तो अवैस ही कहा जाता है। नहीं, हमारे अवेस यहाँ। कहते हैं। अच्छा। और वो बेचारा कॉन्वेंट डे से भुगतता आ रहा है, उसको तो खैर ज्यादा लत्थी चढ़ी नहीं थी भी, मुझे जो मर्जी कह लिया करो। सर इसका मतलब क्या होता है? भेड़िया। हाँ? अच्छा,
ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਗਿਆੜ ਏ यार जेदा भरा जो बगयाड़े वो आप की होएगा। सर ये नाम लोग फिर क्यों रखते हैं? आपको कई दफा मैंने कहा है कि मेरा मोस्ट फेवरेट एनिमल कौन सा तो है? सर वो तो आपका है ना फेवरेट, लेकिन हु चेचनिया का कौमी जानवर कौन सा है? चेचनिया का हीरो किसको कहते हैं? चेचन मुजाहिदीन अपने आप को अल्फा समझते हैं कि अल्फा कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। डॉक्टर साहब आपको पता फहद का मतलब क्या है? मैं बता दूं, शेर? चीता। शेर, हाँ। अब देखें कितने हमजा, जैगम, असद, असद, जरगाम, हाँ। दे आर ऑल लॉयंस। तो अगर लॉयन हो सकता है तो व्हाई नॉट अवैस? क्योंकि मैं उसको ज्यादा कीमती और शानदार जानवर समझता हूं। लॉयन तो फिर टेम हो जाता है। आपको सर्कस में नजर नहीं आता? आप मुझे बताइए कि आपने कितनी दफा हंटर के आगे झुकते देखा है एक भेड़िए को? जी जी, कभी भेड़िया नजर नहीं आएगा। आप चिड़ियाघर जाएं, खुसूसी इंस्ट्रक्शंस इसी केज के बाहर होंगी। कभी शेर, पास नहीं जाना। बबर शेर या हिप्पोपोटामस या ये क्रोकोडाइल के बाहर नहीं होगा, बहुत डेंजरस। वहां लिखा होगा एक्सट्रीमली डेंजरस। ख्याल रखें अपना। भाजी मेरा बच्चा हल मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। मैं वैसे नहीं रखांगा, डायरेक्ट भेड़िए ही रखांगा। ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੇੜੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਸੀ ਭੇੜੀਆ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਨਫੀਸ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਤਾ ਭਲਾ? मेरे दादा ने। ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ? ਖਪਤੀ ਖਪਤੀ दहशतनाक बल्कि दहशतगर्द। सूरज को कहते हैं आफ्ताब। सूरज ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਮੁਸ਼ਕਲ सूरज है कभी डूबता ही नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰ? छोटा। ਓਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭੰਨਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। अच्छा जी, एक बड़ा खूबसूरत नॉवल है चेचनिया का भेड़िया। चेचनिया का, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत टाइटल। मैंने फिर कहा कि ये क्या, इसके बारे उनके ये उसके हीरो का तस्करा है। एक जर्नैल था चेचनिया का भेड़िया। तब मुझे पता चला कि चेचन्स का हीरो जी वुल्फ, और वो भी अल्फा। ये जो सैकड़ा है, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? सैकड़ा नहीं सैकड़ा। ਸੈਕੜਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਨ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕੁਟਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ, 28 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਟਣ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। अच्छा जी, इसका मंबा दिलचस्पी का बायस है। ये बात कड़ा, काफ डे अलिफ। कड़ा जो है ना हिंदी में जीरो के लिए इस्तेमाल होता है। सर जैसे गोल दायरा सा होता है उसको भी कड़ा जी कहते हैं। कड़ा। अब आपको पता चला कि कड़ा क्यों कहते हैं, बैंगल क्यों कहते हैं? गोल दायरे के लिए, जीरो के लिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जीरो इख्तरा किसकी है, जीरो डिस्कवरी किसकी है? इंडियंस की। हमारे खित्ते ने, बरे सगीर ने दुनिया को जीरो से रोशनास करवाया। इंडियंस एंड ग्रीक्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड। फिर अरब्स इनके साथ साथ जो है ना, इनके पाए का और कोई भी नहीं था। अब देखिए इब्न हैसम ख्वारिज़मी, व्हाट अ ग्रेट मैथमेटिशियन ही। अब आइए आंकड़ा। आंकड़ा लगा ही मेरा भरावा राती 5800 आंकड़ा चुके हैं। यस यस यस, आंकड़ा 1 0 वाला। हाँ जी हाँ जी। दो कड़ा, दो कड़ा कहते दो कड़ा जी। सैकड़ा, चौकड़ा, चौकड़ी मार के बैठते हैं। चौकड़ा 4 zeros वाला। सैकड़ा है जिसमें 3 डिजिट्स होंगे, 2 zeros and 1, वो न्यूमरल शुमार होगा ना। ये सैकड़ा है। चौकड़ा इज 1000 जिसमें 3 zeros और एक साथ इजाफी 4 digits। 4 digits हो जाएगा। सर हिंदी में जीरो को शून्य भी तो कहते हैं ना? शून्य हिंदी में कहते हैं जी। कड़ा पंजाबी में कहते हैं। दोनों का मंबा संस्कृत है। कदीम कड़ा है, जदीद शून्य है। अच्छा जी, अगला लफ्ज ओहो गंवार।
बैठे ने सारे अनपढ़ जाहिल गंवार। अब देखो गंवार का मतलब जाहिल समझा जाता है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਭਾਜੀ। इसका मतलब है गांव वाला, गाँव गांव वाला, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ गांव वाले ही हो। प्योरेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपने आप को 24 कैरेट कहता हूँ ना, पिंडू। ये आपके नागी साहब ये 9 कैरेट है। तो सर फिर इसको जाहिल क्यों कहा जाता है? जाहिल इसलिए कि हुआ ये होगा, हम अखज़ कर लेते हैं ना, ये हुआ हो। किसी शहर में किसी खालिस शहरी मसले को डिस्कस किया जा रहा होगा, कोई बल्दियाती इशू ज़ेर बहस होगा, यानी ज़ेर ज़मीन पाइप्स की बात हो रही होगी, बिजली के खंभों की बात हो रही होगी, सुई गैस की बात हो रही होगी। तो किसी ने कहा होगा यार फलां समझदार है, नागी को बुला लो, नागी से पूछते हैं वो क्या कहता है। तो किसी ने फौरन कहा होगा यार वो तो गंवार है, यानी वो तो शहर का नहीं है, शहरी से पूछो ना। तो पुन्नू वहां खड़ा, राशिद कमाल जैसा, इसने कहा होगा कि यार जो अनपढ़ है, जाहिल है, उसको गंवार कहते हैं, जिसको नहीं पता, जिसको पता नहीं है चीजों का, उसको शहरी मामलात का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहरियों को गांव के मामलात का नहीं पता। अच्छा जी, लफ्ज पेंडू गलत है, आप कहते हैं ना पेंडू, पिंड से है वो पिंडी इज स्मॉल पिंड, पिंडी, पिंडी घेप, पिंड पिंडी छोटा पिंड, और पेंडू इज रॉन्ग, इट इज पिंडू। पिंड से पिंडू, हाँ पिंड से पिंडू, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਿੰਡੂ ਕਹਿਣਾ। नहीं पिंडू जो पेंडू है ना उसको कहते हैं पिंडू, लॉरी कहते हैं पेंडा। हालांकि पेंडू हम लोग उस सेंस में नहीं लेते कि कोई गांव से बिलोंग करता है, पेंडू उस सेंस में लेते हैं अगर जिस तरह किसी को ड्रेसिंग, जाहिल गंवार, बिल्कुल हाँ ड्रेसिंग सेंस नहीं है या यू नो रस्टिक को हम इस्तेमाल करते पेंडू के लिए अंग्रेजी का सही लफ्ज बम्पकिन है, हैं। हाँ बम्पकिन, और अगर वो पहाड़ी इलाके से है तो फिर हिल बिली। हिलबिली। अच्छा जी, आज का शेर जबर इकबाल साहब कहते हैं, हुस्न के इनकार से भी कुछ तो पर्दा रह गया, हुस्न के इनकार से भी कुछ तो पर्दा रह गया, मैं भी काफी मुतमईन हूँ वो भी अच्छा रह गया। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि राह चलते अजनबी मुसाफिरों के साथ बगलगीर होने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। अलजायर, अल्जेरिया। तो सर क्यों बगलगीर हो रहा है? ये रमज़े साहब हैं, इनको बड़ा शौक था खामखा की चीज़ें पोस्ट करने का। एक यूरोपियन यूट्यूबर है जिससे ये बहुत मुतासर है। वो क्या करता है, हर आते जाते के साथ गले मिलता है, बातचीत करता है, सलाम दुआ करता है। जिस तरह वो करता था इसने भी वही कुछ करना शुरू कर दिया। वो यूरोप में है, वहाँ पर ख़वातीन के साथ मानका कर सकते हैं आप, इसने यहाँ पे शुरू कर दिया। दिस इज अ मुस्लिम कंट्री। जब इसने चीजें पोस्ट की तो लोगों के घर वालों ने देखा, लड़कियों की, ये तुम क्या करती रही हो अभी? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, राह चलते हुए कोई एक पागल सा था, हम डर के, बंदा डर जाता है ना कि मैं क्या करूं आगे से, कितना को रेजिस्ट करूं। इसकी शिकायत कर दी, बात अदालत में पहुंच गई। इसने बड़ी माफियां, तरले मिन्नता कि मुझे माफ कर दे। 2 माह कैद, 5 मिलियन दिनार्स जुर्माना। 5 मिलियन दिनार्स कितने होते हैं? ये तकरीबन 1 करोड़ को 4-5 लाख पाकिस्तानी रुपया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਸ ਵਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਹੀ मजाल नहीं, वो दूर से यूं करेगा। लीना नामी एक टिकटॉकर थी इंडोनेशिया में, उसको सजा हुई बड़ी सख्त, 2 साल की सजा। किस बात पे? अच्छा, उसने तौहीन मजहब की थी कि इट्स अ मुस्लिम कंट्री एंड इफ यू इंसिस्ट ऑन ईटिंग पोर्क यू डोंट शाउट एट द टॉप ऑफ योर लंग्स दैट आई एम ईटिंग पोर्क। उसने क्या किया, पोर्क खाने से पहले कहती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ये वायरल भी कर दिया उसने। इस पर फिर जज ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमने खुद खा लिया होता ना, ओके ये तुम्हारा और उसका मामला। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। 2 साल कैद से बढ़कर क्या सजा हो सकती? ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਮੇ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਵਿਹਲੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਖੈਰ। एक बंदा खतरनाक करतब दिखाया करता था अमेरिका में और वायरल कर देता था, जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे, मोटर बाइक एंड हेलीकॉप्टर। एक दफा जज ने देख लिया कि ये हरकत, ये क्या की हुई है इसने, ये क्वालिफाइड है इस काम के लिए, सर्कस में कर रहा है, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं, सिर्फ करतब करता है। ये केस जो था ना, इसमें उसने ये किया कि अपनी कार लैम्बोर्गिनी पे शोले गिराए, आग गिराई फ्रॉम हेलीकॉप्टर। चलो कैसे पागल था ना वो, मतलब टिकटॉकर था। और एक और है केस, उसको 6 माह कैद सुना दी गई। ही वॉज अ फ्लायर, जिसने अपना प्लेन गिरा दिया था। वो पैराशूट से कूद गया कि जहाज डिगदा डिगे पे, वो खुद कूद गया,
पर उसे 6 माह कैद सुनाई गई। ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਕਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬੰਨ ਕੇ ਛਾਲ? ये शौक नहीं है आपको, नहीं तो आप कर चुके हो। हाँ नहीं, मेरा शौक होता तो मैं कर लेता। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸੱਪ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਸੱਪ ਲੜਾਇਆ ਵੀ खाता ਹੈ। कदों है? ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ। ईल थी, ईल बेवकूफ, ईल। ਅੱਛਾ इल, इल। वो ईल होती है सांप के जैसी होती है। सांप जैसी मछली नहीं होती? हाँ 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 ਉਹ और ਲੰਮੀ यार ਜਿਹੀ। मली मच्छी, ਮਲੀ ਮੱਛੀ। और ये लंबे रुख होंगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸੱਪ ਅਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इनके इलाके में असल में काफी है, तो इनकी जो डिवीजन है वो तो गुजरांवाला ही है ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਮਲੀ ਮੱਛੀ कई टिकटॉकर्स ऐसे हैं बेचारे जिन्हें जान का नजराना पेश करना पड़ा टिकटॉक के लिए। सब बेचारे तो ना हो, बेवकूफ। बेवकूफ बेचारे ही हुए ना, जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं थी। 2 केसेस को तो मैं जानता हूँ। एक कचोरा लेक में गिरा, मर गया, कचोरा लेक अप देयर इन स्कर्दू, हाँ जी शंग्रीला के ऊपर। जी हाँ। और एक माइटी इंडस में, ਵਾਇਰਲ होने की वजह तो बस। सिर्फ वायरल होने के, कई गन्स के साथ ऐसे करके ना अपनी तरफ गन करके, ये सच गलती से हाथ लग जाता है उसको। और पागल के पुत्र ऐसे हैं कि उन्हें अनलोड करना नहीं आता, किसी की गन होगी ना उठा के उड़ गई, यहाँ से दूसरी तरफ निकल गई। शर्म करनी चाहिए इनको, हया करनी चाहिए। इतने ये बेगैरत लोग हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसे किसी को जफ्फी डालते हैं सड़क पे। आपको किसने जफ्फी डाली? ये जो बैठा उल्लू का पट्टा, इसको शर्म नहीं है, इसको हया नहीं है। मैंने ना यूट्यूब पांदे नहीं तेरी फड़ के जेन च रखी। मैं किहड़ा और मकसद ना जफ्फी पाई है, मैं तो टिकटॉक बना रहा था जनाब। ओए मकसद, तुम्हारा मकसद था ये, तुम टिकटॉकर ना बड़े ठरकी, में तुम्हें जानती नहीं हो। बेशरम आदमी, मुझे जफ्फियां डालते रहे हो। मेरा भाई साथ था, शुक्र है उसकी गैरत नहीं जाग गई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरा लिबरल वाਕਿਆ हुआ हूँ। ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਭੈਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਭੈਣ ਲਈ ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀ ਆ? ਓਏ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਪੀ ਕੇ ਜੱਫੀ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। और मेरे नाल भी जफ्फी गत्ती तू मनहूस ने। ईमानदारी वाली गल है, पहले माई हुंदा सीगा, हुणी बाबा होया जे। जफ्फी के बाद जी हफ्ता मैंने कहीं शादी भी करवानी है, क्या सोचेंगे लोग, ये जफ्फियां डालती फिर रही है। यूरोप में ना अपनी बहनें लेके जाओ, लोगों को भी जफ्फियां डालो और लोगों की बहनों को खुद डालो। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आप अल्जेरियन कैसे लग रही हैं? आपने कोई अबाया शबाया तो पैदा नहीं हुआ? अच्छा, हर वक्त नहीं ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅੜੀ ਹੈ, 3 ਚੱਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਗਿਆ, मुसीबत पाती। नहीं, आपको भी कोई काम का ट्रेंड नहीं मिला कि कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर आए? मैं क्या यूरोप वाले मुंडे अंगर मैं भी अपने मुल्क च मशहूर हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, सबसक्राइबर बदन गए, मैनू की पता ही मैनू जेल हो जानी है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਂਗਾ ਫੀ ਜੱਫੀ। मैं आख्या खैर गुस्सा पे करना, तो कारोबार ही निकला है। मैंने समझा उसे कहने लगा मेरे साथ करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो वाकई बिजनेस करने लग गया। ਵੇ ਗੰਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਦੀ ਸੜਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਐ ਲੋਕੀ ਬਚਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਫੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਪਾਓ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਨ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? मैं तू पूछता पिया। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ ਆਪਣੀ। ਯਾਰ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। नहीं नहीं, इसको डिटॉक्स किया हमने, डिटॉक्स। ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਟੌਕਸ? डिटॉक्स ਦਾ मतलब है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? अनलर्न करवाना है तुम्हें। जितना तुमने लर्न किया है वो पहले अनलर्न करोगे, फिर नया लर्न करो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਵਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? इसे खोल कर देखा था मैंने, ਫਿਰ टोटल खाली। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। नहीं, चाचा बूटा तो फिर इसके अंदर इंसर्ट किया गया है ना। वो तो एक बोतल नहीं लाई थी ग्लूकोज दी। ਹਾਂਜੀ, चाचे बूटे दियां तो बोतलां लगियां ने इनू। ਓਏ ਤੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਨੇ, ਲਾਣਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ। एक जफ्फी संदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू?
ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੇਵਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਮਾਨਨਾ। ਮੈਂ ਮਧੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਤਾਂ 100-150 ਵਾਲਾ ਆਈ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।